14 सितंबर की दोपहर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रोटेस्ट कर रहे जूनियर डॉक्टर से मिलने पहुंची। ऐसा तब हुआ है जब 3 बार प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स को मिलने बुलाने के बाद भी सीएम ममता से मिलने के लिए कोई प्रोटेस्टर नहीं पहुंचा। ये प्रदर्शन आरजीकर मेडिकल कॉलेज केस के सिलसिले में चल रहा है। जूनियर डॉक्टर्स कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके के करीब स्वास्थ्य भवन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रदर्शन स्थल पर जूनियर डॉक्टर्स और ममता की मुलाकात के बाद शाम करीब 7 बजे सीएम आवास पर जूनियर डॉक्टर और ममता बनर्जी के बीच में बैठक हुई। बैठक में राज्य के टॉप अधिकारी भी, सरकार के जो टॉप अधिकारी हैं वो लोग मौजूद रहे, जिसमें चीफ सेक्रेटरी मनोज पंत, पश्चिम बंगाल के डीजी राजीव कुमार, ममता बनर्जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और स्वास्थ्य विभाग के सचिव नारायण स्वरूप निगम और राज्य सरकार की मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य का नाम भी इसमें शामिल है। पहले क्या क्या कोशिशें हो चुकी हैं, गवर्नर ने इस सिलसिले में सीएम ममता बनर्जी को लेकर क्या घोषणा की थी और प्रोटेस्ट के बीच कितने बीमारों की जान गई है, ये सब भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये देखते हैं कि ममता बनर्जी ने प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर से मिलकर क्या कहा। ममता के भाषण के कुछ अंश हिंदी में समझाने के लिए हमारी मदद की इंडिया टुडे के पत्रकार अनिर्बन सिन्हा रॉय और सूर्याग्नि रॉय ने। सबसे पहले तो ममता ने कहा कि मैं आपके प्रोटेस्ट को सलाम करती हूँ। आगे ममता ने कहा, मैं भी एक छात्र नेता थी। पिछली रात बहुत तेज बारिश हुई, ना आप लोग सो पाए और ना मैं ही। ये सब 33 दिनों से चल रहा है। जब आप लोग सोते हैं हम जागते हैं। আমি জানি আমার পোস্টটা বড় কথা নয়, মানুষের পোস্টটাই বড় কথা। আমি আপনাদের কাছে বলতে এসেছি, কাল সারা রাত ঝড় জল হয়েছে। আপনারা যখন কষ্ট পেয়েছেন আমিও সারা রাত ঘুমোতে পারিনি, আমারও কষ্ট হয়েছে। এই ঝড় জলের মধ্যে আপনারা যেভাবে বসে আছেন আমার মানসিকভাবে কষ্ট হচ্ছে। আপনারা আজকে 33 দিন 34 দিন, আমিও কিন্তু রাতের পর রাত ঘুমাইনি, কারণ আপনারা যখন রাস্তায় থাকেন আপনাদের জন্য আমাকেও কিন্তু পাহারাদার হিসেবে জেগে থাকতে হয়। আপনারা অনেক কষ্ট পেয়েছেন, আর কষ্ট না করে যদি আপনারা কাজে ফিরতে চান, আমি আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আপনাদের ডিমান্ডগুলো আমি কথা বলে সহানুভূতির সাথে আমি स्टडी করব। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि आप लोगों ने बहुत परेशानियां झेली हैं, अब और नहीं। अगर आप वापस काम पर लौटना चाहते हैं तो मैं आपकी पूरी मदद करूंगी, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। আপনারা অনেক কষ্ট পেয়েছেন, আর কষ্ট না করে যদি আপনারা কাজে ফিরতে চান, আমি আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আপনাদের ডিমান্ডগুলো আমি কথা বলে সহানুভূতির সাথে আমি স্টাডি করব। আমি অফিসারদের সাথে কথা বলবো। আমি একা সরকার চালাই না, আমার সাথে একটা চিফ সেক্রেটারি, হোম সেক্রেটারি, ডিজি পুলিশ সবাই আছেন। আমি আপনাদের বলতে চাই, আপনাদের ডিমান্ডগুলো আমি ভাববো, আমি চিন্তা করব। যদি কেউ দোষী হয় তিনি নিশ্চয়ই শাস্তি পাবেন, এবং আমি চাই তিলোত্তমার বিচার হোক। আমি সিবিআই কে অনুরোধ করব যত তাড়াতাড়ি বিচার হোক, এমনকি 3 মাসের মধ্যে তারা যেন ফাঁসির অর্ডার দেয়। আমি এটা সিবিআই কে অনুরোধ করব আপনাদের প্ল্যাটফর্মে বসে। আর আপনাদের কাছে আবেদন জানাবো, আমাকে একটু সময় দিন, আমি ব্যাপারগুলো নিয়ে আমি চিন্তা ভাবনা করব। যদি আপনাদের আস্থা ভরসা আমার উপর থাকে, আমি কথা বলে সিদ্ধান্ত, অন্তত যদি কাউকে দোষী পাই আমি নিশ্চয়ই নেব। इन सभी बातों के बाद ममता बनर्जी ने सीबीआई को लेकर भी कहा। उन्होंने कहा कि मैं सीबीआई से कहूंगी कि दोषियों को फांसी की सजा दिलवाई जाए। अगर आपको मुझ पर यकीन हो तो मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। इसके अलावा ममता ने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करते हुए प्रदर्शनकारियों से धैर्य रखने को कहा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जूनियर डॉक्टर्स से प्रोटेस्ट खत्म करने की गुजारिश भी की। इन बातों के दौरान मौके पर जमकर नारेबाजी हुई, शोर शराबा भी हुआ। সুপ্রিম কোর্টে কেস চলছে, মনে রাখবেন 17 তারিখেও ডেট আছে। আমি চাই না আপনাদের কোনো ক্ষতি হোক,
আপনাদের দিদি হিসেবে আপনাদের কাছে আমি অনুরোধ করতে এসেছি। আমি মুখ্যমন্ত্রী নই, আমি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বলতে আসিনি, আমি আপনাদের দিদি হিসেবে বলতে এসেছি, যাতে আপনারা না ভাবেন হ্যাঁ আমি চিফ মিনিস্টার আছি, আমি একটা পার্টিও বিলংস করি, কিন্তু আপনাদের কাছে এসেছি যদি বলেন অ্যাজ এ চিফ মিনিস্টার, অ্যাজ এ এল্ডার সিস্টার, এবং আপনাদের আন্দোলনের সমব্যথী এবং সমসাথী, তাহলে আপনাদের অনুরোধ করব আমার কথা শুনুন। আগেও আপনাদের সমস্যা আমি সমাধান করেছি এবং আবার আমি করবার চেষ্টা করব। আমাকে একটু সময় দিন, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আর একটা কথা বলবো, আমি আপনাদের কাছে আবেদন ছাড়া কিছু করতে পারি না, আমি আপনাদের জোর করতে পারি না, আমি আপনাদের কাছে আবেদন করে গেলাম যদি আপনারা মনে করেন আপনাদের ধর্ণা মঞ্চে আসার ফলেও। सीएम ममता बनर्जी के दौरे के बाद बीजेपी खेमे से भी रिएक्शन आया। बंगाल की हुगली लोकसभा सीट से पूर्व बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने एक्स पर लिखा कि हाल ही में स्वास्थ्य भवन जाते वक्त जूनियर डॉक्टर्स के प्रदर्शन स्थल पर ममता बनर्जी का दौरा सिर्फ फोटो खिंचवाने का एक मौका लेने से ज़्यादा कुछ नहीं था। उनकी 5 मिनट की छोटी सी स्पीच में प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टरों की असल परेशानियों के लिए बिल्कुल कुछ नहीं था, जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में रेप और हत्या की पीड़िता के लिए न्याय की मांग कर रहे थे। डॉक्टर्स के साथ बातचीत करने से इनकार करना या उनकी समस्याओं को नज़रअंदाज करना यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वो उनकी परेशानियों को हल करने के लिए गंभीर नहीं हैं। ये हल्का कदम केवल मेडिकल समुदाय में अविश्वास और हताशा को बढ़ा रहा है। उनके ऐसे कामों की कड़ी निंदा करना जरूरी है। जब इस मामले की बात हो ही रही है तो सीएम के दौरे से बस एक दिन पहले की भी बात होनी चाहिए। 13 सितंबर की बात। 13 तारीख को टीएमसी के ही सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा था कि प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टर्स डॉक्टर बनने के योग्य नहीं हैं। सांसद कल्याण बनर्जी का ये बयान तब आया था जब प्रोटेस्ट करने वाले जूनियर डॉक्टर्स ने राज्य सरकार से मुलाकात के लिए इनकार कर दिया था। तब जूनियर डॉक्टर्स ने ये शर्त रखी थी कि आरजीकर के मुद्दे को लेकर मुलाकात तभी होगी जब मीटिंग की लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। 13 सितंबर को ही पश्चिम बंगाल के गवर्नर यानी राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी एक घोषणा की थी। गवर्नर ने अपने आधिकारिक मैसेज में ममता बनर्जी का सामाजिक बॉयकॉट करने का आह्वान किया था। उन्होंने कहा था कि बंगाल की ममता सरकार के खराब काम, उनके खिलाफ प्रदर्शन और लोगों को न्याय न दिलवा पाना इसकी वजह है। गवर्नर ने यह भी ऐलान किया था कि वो ऐसे किसी भी पब्लिक फंक्शन में नहीं जाएंगे जहां सीएम मौजूद हों और वो सीएम के साथ कोई सार्वजनिक मंच भी साझा नहीं करेंगे। इसके पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं देश और दुनिया के उन लोगों से माफ़ी मांगती हूं जो उनका यानी प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स का समर्थन कर रहे हैं। कृपया अपना समर्थन दें, मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक वो यानी प्रदर्शनकारी डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर वापस लौट जाएं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन हम कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि कभी कभी हमें बर्दाश्त करना पड़ता है, ये हमारी जिम्मेदारी है। गुरुवार को ही ममता बनर्जी ने कहा था कि जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते स्वास्थ्य सेवाएं रुकी पड़ी हैं। नतीजतन 29 लोगों की मौत हो गई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी सिलसिले में उन्होंने शुक्रवार यानी 13 सितंबर को एक्स पर पोस्ट कर मुआवजे की घोषणा भी की थी। उन्होंने लिखा था कि लंबे वक्त से जूनियर डॉक्टर्स के काम बंद पड़े होने की वजह से स्वास्थ्य सेवाएं रुक गई हैं। ये बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसके चलते हमने 29 अनमोल जानों को खो दिया। शोकाकुल परिवारों की ओर मदद का हाथ बढ़ाने के लिए राज्य सरकार हर मृतक के परिवार को राहत राशि के रूप में 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा करती है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल मामले पर आगे जो भी अपडेट आएगी ललन टॉप के ज़रिए हम आप तक वो जानकारी पहुंचाते रहेंगे। आपके लिए ये तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी शेख नावेद ने। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।